केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम chemical equilibrium. What is chemical equilibrium? What is chemical equilibrium? In any chemical reaction, in any reversible chemical reaction, any chemical reversible reaction, A plus B reversible C plus D. In any chemical reversible reaction, any chemical reaction, A plus B, C plus D. A plus B is the reactant and C plus D is the product. A plus B reactant and C plus D product. And C plus D are also reactant and A plus B are also product. हमारा ना A plus B reactant है, product भी है. C plus D reactant भी है और product भी है, दोनों. Clear? The rate of reaction ROR is directly proportional to the product concentration of the product. A plus B reactant का जो concentration है उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. क्या रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. नोट करिए, नोट करते रहिए. कंसंट्रेशन A B, concentration of A and concentration of B, rate of reaction ROR directly proportional to the concentration of A and concentration of B. Clear? Then rate of reaction directly proportional to the concentration of C and concentration of D. Concentration of D. C and D के concentration. It is Harvard reaction. कैसा reaction है? Harvard reaction. Harvard reaction. It is backward reaction. Backward reaction. है ना? And then rate of reaction for forward reaction ROR is equal to rate constant. प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे, क्या जाएगा? रेट कांस्टेंट आ जाएगा. क्या हो जाएगा? KF रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन A रेट क्या हो जाएगा? B कंसंट्रेशन ऑफ B. प्रोपोर्शनलिटी आप हटा देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन ROR is equal to KB rate constant for backward reaction CD. Clear? At the time of equilibrium point में क्या हो जाएगा? ROR for backward is equal to ROR for forward. दोनों बराबर हो जाएंगे. यहाँ लिख देंगे at equilibrium rate of reaction for forward reaction ROR for forward reaction is equal to ROR for backward reaction. Clear? ROR for backward reaction दोनों बराबर हो जाएंगे. कब होंगे? एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम जब हो जाएगा रिएक्शन का, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा? दोनों रिएक्शन के रेट क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे. पता है? क्लियर है? ROR फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ROR फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाएंगे. एंड देन आई विल राइट दैट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. एंड देन I will write this equation
जाएगी ना, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों बराबर है। और हमने देखा कि R O R is equal to Kf concentration of A concentration of B, and then R O R for backward reaction is equal to Kb concentration of C concentration of D. Kf upon Kb क्या हो जाएगा? Kf upon Kb क्या लिखेंगे? is equal to क्या हो जाएगा? Concentration of C, हम इसको इधर ला दें, concentration of C concentration of D upon concentration of A concentration of B. Clear? Concentration of C concentration of D upon concentration of, अब ऐसे कर देंगे Kf, ऐसे करिए, बराबर है ना? खराब होगा? क्लियर है? एंड Kf upon Kb, Kf upon Kb is equal to Ke, यही है इक्विलिब्रियम, यही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kf upon Kb is equal to Ke, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर? Kf upon Kb is equal to Ke, confirm? And K is equal to also we write concentration of C and concentration of D upon concentration of A upon concentration of B. Clear है? देख सकते हैं इसको? कंफर्म है? कर दीजिए। K equilibrium constant. Equilibrium constant. K is the equilibrium constant. K is the equilibrium constant. Equilibrium constant देखिए, K are of two types. Equilibrium constant are of two types. K are of two types. Two types. K are of two types. First is Kc. First is Kc. And second is Kp. Second is Kp. Kc and Kp. Kc and Kp. What is Kc and Kp? Kc equilibrium for liquid state. Liquid and gas both are considered as liquid or gas. Considered both liquid or gas. Kp only considered gas. Only considered gas. केवल गैस को कंसीडर करता है, Kp कंसीडर करता है गैस को, Kc कंसीडर करता है लिक्विड एंड गैस दोनों को कंसीडर करता है। क्लियर? There are some example, है ना? We will write that Kp, Kc and Kp. There are some example for write Kc and Kp. हो गया? लिख लिया सब? हम आगे बढ़ते हैं। Next, for example, I will write Kc and Kp. For example, calcium carbonate. Calcium carbonate CaO plus CO2. CaCO3 क्या है? सॉलिड है। CO सॉलिड, CO2 गैस। CO2 गैस। और सॉलिड द इक्विलिब्रियम इज कांस्टेंट। सॉलिड के लिए क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज द कांस्टेंट 1। सॉलिड के लिए इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है? 1। क्लियर? Kc इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको कैसे? concentration of CaO, concentration of CO2 upon concentration of CaCO3. Concentration of CaCO3. CaO, CO3 are solid. At equilibrium
equilibrium it is represented constant value 1, represented constant value 1। इसको हम constant value क्योंकि सॉलिड का कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि वह किसी भी केमिकल रिएक्शन में सॉलिड का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता, इसलिए हम उसको क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यूनिटी। क्या मानते हैं उसको, यूनिटी। देन Kc equal to concentration of CO2। Why CaO concentration of CaO is equal to 1, concentration of CaCO3 is equal to 1। क्लियर? इन दोनों का क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन 1, क्योंकि दोनों क्या है, सॉलिड है, दोनों सॉलिड है, हम उसको कंसंट्रेशन क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। देन कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ओनली फॉर CO2, केवल CO2 के लिए होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, CaCO के लिए, CaCO3 के लिए देयर इज नो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर? समझ आ रहा है? सेकंड एग्जांपल, अनदर एग्जांपल बना लीजिए इसको। समझ आ रहा है? सॉलिड है तो उसके लिए हम 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 1। सॉलिड है तो 1 लेंगे हम, केवल हम कंसीडर किसको करेंगे, जिसका कंसंट्रेशन रिएक्शन में चेंज होता है। जिसका कंसंट्रेशन रिएक्शन में चेंज होगा केवल हम उसी को कंसीडर करेंगे, जिसका कंसंट्रेशन रिएक्शन में चेंज नहीं होगा हम उसको क्या मानते हैं, यूनिटी। क्या मानते हैं, यूनिटी। देयर इज नो एनी चेंज इन द कंसंट्रेशन एट वो कांस्टेंट है, उसका वो रिएक्शन में उसको इक्विलिब्रियम स्टेज में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो क्या है, उसमें क्या रहता है, यूनिटी कांस्टेंट रहता है। चेंज किसका होगा, CO2, क्योंकि गैस है ये चेंज होगा। लिक्विड है वो चेंज हो जाएगा, लिक्विड है उसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। सॉलिड का हर समय ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज 1, है ना, हम उसको ऑलवेज कंसीडर किस में करते हैं, 1 यूनिट, उसकी वैल्यू हर समय यूनिट होगी। कहीं भी रिएक्शन आ जाए तो इसको देखना आप, अगर वहां पे सॉलिड है तो उसको कभी, अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत। आपका सही क्या है, ये सही, ये क्या है आपका गलत है। क्यों, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में इसका कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन कभी चेंज नहीं होता। ठीक, अनदर एग्जांपल, H2 plus I2, H2 plus I2, 2HI, गैस, HI क्या है, गैस। What is the value of Kp? Kp is equal to HI, concentration of HI की पावर 2, स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू है ना, स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू रिप्रेजेंट एज द पावर वैल्यू। स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पावर, उसको हम पावर में दिखा देते हैं। एंड देन कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 1, कुछ भी नहीं है, 1, I2 की पावर 1। क्लियर? ये है आपका Kp की वैल्यू। यहां हमने क्यों कंसीडर किया, क्योंकि सभी क्या है, गैस है। एक गैस मीडियम है तो हम Kp वैल्यू हम सबको कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहां कंसंट्रेशन H2I2 and HI है ना, कंप्लीटली विल बी कंसीडर्ड एज द Kc, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, Kf इज इक्वल टू, किसके बराबर हो जाएगा, Kf इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2I2 फॉरवर्ड रिएक्शन, Kb इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन HI
KF KP ये ठीक क्लियर KP एंड KC बना लीजिए एग्जाम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम इस चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे KC KP को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा क्या तरीका है रिप्रेजेंट करने का हम किसको कंसीडर करें रिएक्शन में इक्विलिब्रियम में हम किसको किन को कंसीडर करते हैं किसको कंसीडर नहीं करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल N2 plus 3H2 2NH3 2NH3 N2 gas H2 gas 2NH3 gas what is the value of Kp RR gases है ना RR gaseous component then Kp is equal to NH3 concentration of NH3 के पावर 2 divided by concentration of N2 के पावर 1 concentration of H2 की पावर 3 ये है आपका Kp Kp की वैल्यू ऐसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं क्लियर कन्फर्म बना लीजिए हो गया दो तीन लाइन लिख लीजिए The dynamic nature of chemical equilibrium the dynamic nature of chemical equilibrium the dynamic nature of chemical equilibrium can be demonstrated the dynamic nature of chemical equilibrium can be demonstrated in the synthesis of ammonia can be demonstrated in the synthesis of ammonia by Haber process by Haber process by Haber process Haber process by Haber process by Haber process Haber process से हम इसको क्या कर सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट by Haber process देखिए Haber started with known amount of dinitrogen and dihydrogen Haber started with known amount of dinitrogen and dihydrogen known amount of dinitrogen and dihydrogen known amount of dinitrogen and dihydrogen maintained at high temperature maintained at high temperature and pressure maintained at high temperature and high pressure maintained at high temperature and high pressure at regular interval determine the amount of ammonia formation regular interval determine the amount of ammonia formation एक रेगुलर इंटरवल पे इस अमोनिया की फॉर्मेशन को उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया कुछ इंटरवल कुछ गैप किया हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दिया इसको
हाई टेम्परेचर प्रेशर दे करके इसने कुछ इंटरवल दे करके फिर रुक गया, फिर देखा कि कितना अमोनिया बना, फिर प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाया, फिर देखा इसने कि अमोनिया कितना बन रहा है। तो रेगुलर इंटरवल करके इसने जो है अमोनिया के फॉर्मेशन को डिमॉन्स्ट्रेट किया, प्रदर्शित किया, दिखाया कि कैसे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है बाय हाइबर प्रोसेस। ये है हाइबर मेथड से इसको किया जाता है। क्लियर? एंड क्लियर कंसंट्रेशन चेंज करेंगे क्योंकि गैस है, गैस का कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ पार्शियल प्रेशर। हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे, गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो अमोनिया का फॉर्मेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। जितना हम प्रेशर देंगे अमोनिया का फॉर्मेशन बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे अमोनिया का फॉर्मेशन बढ़ेगा, और प्रेशर घटाएंगे तो अमोनिया का फॉर्म क्या हो जाएगा, अमोनिया क्या हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाएंगे अमोनिया बनेगी, प्रेशर घटा देंगे तो अमोनिया क्या हो जाएगी, रिवर्स होने लगेगी, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? इस बेस पर उन्होंने इसको बनाया था क्योंकि ये जो प्रोसेस है अमोनिया का फॉर्मेशन एज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस। हम इसको तभी बना सकते हैं जब इसको प्रेशर देते रहें, और जो प्रेशर देंगे तभी अमोनिया बनेगा, और बिना विदाउट प्रेशर अमोनिया ब्रेक इनटू डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? समझ आ रहा है? ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, ढेर सारे एग्जांपल इस तरह से बनते हैं, और कुछ एग्जांपल आप और भी सोचिए, बनाइए कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है ना, किस तरह से बनते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं CH3 COO यानी सोडियम एसिटेट प्लस H2O क्या बनता है, CH3 COOH प्लस NaOH प्लस NaOH। एंड एग्जांपल आपके केमिकल इक्विलिब्रियम है ना, एंड what is the value of Kc? Kc is equal to concentration of product, concentration of reactant, product concentration of product CH3 COOH, concentration of NaOH, concentration of NaOH, concentration of reactant CH3 COO Na, concentration of H2O, concentration of H2O. ठीक? The concentration of H2O will be 1. Why? There is no any change in H2O, concentration of H2O, because H2O is the medium. ये रिएक्शन किसमें हो रहा है, H2O मीडियम में। हम किसी रिएक्शन को मीडियम में ले लेते हैं तो मीडियम के कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं होती है, इसलिए यहाँ इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू यूनिट हो जाएगी। यूनिटी क्यों यूनिट हो जाएगी, क्योंकि H2O का कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं है। H2O एक्ट्स एज ए मीडियम फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए H2O क्या है, मीडियम है, इसलिए H2O की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, यूनिटी। देन आई विल राइट दैट, लिख लीजिए H2O concentration of H2O is unity, why unity? H2O acts as medium, मीडियम का कंसंट्रेशन कभी चेंज नहीं होता है। कोई रिएक्शन करा रहे हैं एटमॉस्फेयर में, अब वहां से ऑक्सीजन लेगा, क्या ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बदल सकता है, कोई चेंज नहीं होगी। हम पानी में रिएक्शन करा रहे हैं, वाटर में रिएक्शन करा रहे हैं, तो वाटर की कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। एक्ट्स एज मीडियम, एक्ट्स एज मीडियम फॉर रिएक्शन, लिख लीजिए फॉर रिएक्शन। then Kc is equal to concentration of CH3 COOH, concentration of NaOH,
मीडियम था रिएक्शन, ये रिएक्शन का मीडियम है, मीडियम कंसंट्रेशन कभी बदलता नहीं, ध्यान रखना। कंफर्म? ये हो गया आपका, ये है आपका सही, सही जो है आपका ये क्या है गलत है, क्लियर? ये आपका गलत है, सही है क्योंकि यहाँ पे H2O का कंसंट्रेशन नहीं चेंज होगा, ये आपका हो गया Kc, एग्जैक्ट जो Kc का रिप्रेजेंटेशन ये आपका गलत है, समझ आ रहा है? तो इतना आपको ध्यान रखना है कि मीडियम, अगर किसी मीडियम रिएक्शन हो रहा है तो मीडियम जो है का कंसंट्रेशन चेंज होगा कि नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। मीडियम कंसंट्रेशन इज द यूनिट वैल्यू ऑफ मीडियम। H2O का कंसंट्रेशन कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि H2O मीडियम है। जैसे हम किसी खुले आसमान में रिएक्शन करा रहे हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कोई चेंजिंग नहीं होगी, जब नहीं होगी तो उसको क्या मानेंगे, यूनिटी। हम तो उसको कंसीडर करते हैं जहां कंसंट्रेशन चेंज हो, कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रहा है H2O का, क्योंकि H2O क्या है, मीडियम। H2O क्या है, मीडियम। Another example for the chemical equilibrium that is represented by the given formula. You will write that? Yes, sir. Next, the combustion reaction. Combustion reaction, CH4 plus O2. CH4 plus CO2 plus H2O. CO2 plus H2O. CO2 plus H2O. Then बराबर कितना 2H2O ना, बैलेंस कर दीजिए। Then Kc गैस लिक्विड, गैस लिक्विड, क्लियर? Then Kc is equal to Kp, सॉरी Kp लेंगे ना, Kc लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Kp is equal to concentration of CO2, concentration of H2O की पावर 2, H2O की पावर 2 अपॉन concentration of CH4, concentration of CH4O2. What is the concentration of O2? Unity, क्योंकि these reactions are performed in the medium, environmental medium, environment में हो रहा है, environment का ऑक्सीजन कभी चेंज नहीं होगा, वहां से कुछ ऑक्सीजन निकल जाएगा, क्या कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट का ऑक्सीजन घट जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन O2 इज 1, ध्यान रख सकते हैं, O2 कंसंट्रेशन इज यूनिटी, O2 कंसंट्रेशन क्या है, यूनिटी, क्लियर? कंफर्म? बना लीजिए इसको, concentration of O2 is unity, concentration of O2 is unity, confirm? जरा से